Good morning, student. In last video about the Indian economy, we have studied the Indian economy on the eve of independence. We have also discussed the different factors. We have also explained about what was the condition of Indian economy in the eve of independence or the colonial rules. I have also explained about what is the colonial rule. Did you know? You know that colonial rules after any one type of administration is held by their representatives to other countries. यानी एक कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव था जो कि उनकी पॉलिसी को दूसरी कंट्री पे अडॉप्ट करता था, उस पर ओवर रूल करता था, लाइक एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज गवर्न बाय द ब्रिटिश एम्परर एंड होल्ड टू द इंडियन किंगडम्स। तो वह इन यानी यहाँ पे जो रूलर है वह अदर्स कंट्री पे डायरेक्ट रूल नहीं कर रहा है, बल्कि अपने अंडर में एक एजेंसी के जरिए दूसरे पे रूल कर रहा है। दिस टाइप ऑफ रूलिंग इज कॉल्ड द colonial rules. So in that time when the colonial rules are established after the 1757, we know in the last video what was the condition of Indian economy before that the colonial rules. When I have also explained the Indian economy situation. In that time India was called the golden bird in the world. What happened? I have explained last video. What happened? The Indian economies, how they decreased continuous in that time, because this was because in that time the rulers of the colonial rules was interested to develop their economy of their countries. They are not interested in the development of the India. They are not interested to take the more establishment in India. They wanted to only profit for their countries. So they have made different kind of policies from which they can find more profit and get the rule over the Indian kingdom. They have developed the many sectors from that. Also we have explained about the low level of economic development under the colonial rule, while the economy level of goes on downward. Okay? पर डाउनवर्ड क्यों हुई, हमने इनके सेक्टर्स के बारे में पढ़ा। जब इंडियन इकोनॉमी डाउनवर्ड हो रही थी, द इंडियन scholars was worried to see the decline of Indian economy. They also tried to study them. Dadabhai Naoroji, V.K. Rao, Shera and others scholars had tried to know about the condition of Indian economy. Dadabhai Naoroji has also explained the theory of drain, where they have explained how the Britishers are getting the profit for the British for as a drain system. And also V.R. Rao has analyzed the condition of Indian economy. It is the most effective analysis was that time. V.K. Rai also has analyzed that time economy which was going on 2% was going less on 1.5%. तो ये जो सारे फैक्टर्स थे इसके बारे में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि इन दैट टाइम 85% ऑफ पॉपुलेशन आर डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर, फीड एंड अदर ऑक्यूपेशन वी रिलेटेड विद द economy are related with the different kind of sectors are also dependent on the agriculture field. But slowly the other occupation have declined because they are a dependency of the agriculture was downward. They had not got to the raw material from the agriculture, and there the product value was more expensive than the imported finished goods. Because in that time the Britishers have made
too much raw material export to the Britain. So that kind of policy has made to decline of the agriculture field. Industrial sector भी also very flourished by the Britishers' policies in that time for the Britain. The basic sector of the Indian economy, like as a handicraft, is go on downwards because they have not got the raw materials. तो ये सारी कंडीशंस इनके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे डिक्लाइन हुआ, एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी। तो दैट टाइम ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की थी या एग्रीकल्चर सेक्टर की थी वो पाई गई। इसी तरह फॉरेन सेक्टर की हम बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड में भी इंडियन की जो भागीदारी थी, वंस टाइम इंडिया ट्रेड वाज स्प्रेड ओवर द इराक, ईरान एंड चाइना, सेंट्रल एशिया एंड अदर कंट्रीज। बट व्हेन द ओपन ऑफ द स्विच कैनल्स, ब्रिटिश हैज कंट्रोल द इंडियन ट्रेड ऑन सी रूट्स। तो मैनी एक्सपोर्ट from the sea routes of the trader of the raw material are going to go from the to the Britain। तो इस तरह से हुआ, इसका जो फॉरेन ट्रेड था वो भी पूरा पे मोनोपोली इंडिया की हो गई और ब्रिटेन की हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे उनका नियंत्रण होगा। तो ये सारी चीज़ें वी हैव रीड आल्सो इन लास्ट वीडियो। टुडे वी रीड अबाउट द demographic condition। What was the demographic condition? Means the population. What was the condition of population in that time when the 1881 in first time Britishers have also tried to calculate the demographic condition in India। 1881 में पहली बार पॉपुलेशन को काउंटिंग की गई यानी जनगणना की शुरुआत की गई। तो जनगणना की शुरुआत की गई, उसके बाद उसे ये आगे करना गया, बट दैट टाइम वहाँ पर उसकी गणना बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई थी। 1821 के उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे, कोई उसका एनालिसिस कोई सेंट्रलाइज तरीके से नहीं हो पाया था। तो एटलीस्ट जो वहाँ का जो डेमोग्राफिक कंडीशन 1921 के बाद से रेगुलर वे में शुरू हुआ था। तो जो ट्रेडिशनल तरीके से 1921 में जनगणना की शुरुआत हुई और 21 के बाद एवरी 10 ईयर उसको फिर नए सिरे से एनालाइज किया जाता है, जिसे हम सेंसस के नाम से कहते हैं। तो यानी फर्स्ट टाइम जो स्टैटिकल तरीके से जो जनगणना शुरू हुई थी वह 1921 से हुई। आज भी हर 10 साल पे जनगणना की जाती है, एनालाइज किया जाता है। उस जनगणना के जरिए पॉलिसी का मानसिक को बनाया जाता है कि किसके नीड कैसे है। तो उन दैट टाइम बिफोर द कॉलोनियल रूल जब डेमोग्राफिक कंडीशंस को एनालाइज किया गया 1921 में, दैट टाइम वाज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाज टू हाई। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मीन्स कि जो बच्चे 1 साल तक की जो पैदा हुए और 1 साल के अंदर मर जाते हैं उनका जो रेशियो है वो कहता है वह इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहलाता है कि 1 साल के बच्चे जो 1 साल में अंदर मर जाते हैं उनको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्लियर? तो इन दैट टाइम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाज 280 यानी बहुत ज़्यादा थी। पर 1000 में 218 जो चाइल्ड थे वो बर्थ के 1 साल के अंदर मर जाते थे। यानी ये शो करता था कि वहाँ पे न्यूट्रिशन यानी शिशुओं का पालन सही ढंग से नहीं होता था, न्यूट्रिशन की कमी थी यानी उनके स्वास्थ्य की उचित सुविधाएं नहीं थी, पॉवर्टी थी बहुत ज़्यादा। और जबकि आप आज की कंडीशन में भी ये किया जाए इन द प्रेजेंट टाइम द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 40 यानी जो इंडिपेंडेंस का जो एनालाइज आज के रेट में किया गया तो आज 40 अबाउट इस साल 1921 में 218 था। क्लियर? और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन की प्रत्याशा यानी एक व्यक्ति कितने उम्र तक जी सकता है एक एनालाइज किया जाता है जिसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन दैट टाइम
परिभाषा जो थी 44 साल की थी, यानी व्यक्ति चाहे एवरेज जो एज थी वो 44 ईयर थी। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस दे गॉट टू बी 68 ईयर। आज प्रेजेंट टाइम अगर हम कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो आज जो है 68 साल व्यक्ति की आयु मानी जाती है। ये सारी चीज़ें जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं ये इन सुविधाओं की वजह से, जो चाहे मेडिकल से की फैसिलिटीज़ हो, चाहे फूड की इंडिपेंडेंसी हो या इकोनॉमिक स्टेटस के अच्छे होने की कंडीशन, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोग्रेस हैव मेंटेन दिस द रेशियो व्हिच वी गॉट द 40 and 68। तो इस तरह यहाँ पे जो डेमोग्राफिक कंडीशन जो मतलब कहने का मतलब कि उस समय जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी बहुत ही रेयर थी, जिसका रिजल्ट कि लाइफ मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मीन्स कि व्यवसाय की संरचना क्या थी उस समय का व्यवसाय था, उस समय क्या चलता। वी नो वेरी वेल इन दैट टाइम बिफोर द 1785, 1715 we have also explained that 85% of population are dependent on the agriculture. After then the industrialization became in the decline of the agriculture field, development of the industrial sector and the policy of the Britishers in agriculture fields too. And their policies I have also explained about the land settlement, revenue settlement and the commercialization of agriculture. All those factors have affected the Indians agriculture's laborers. They gave up the agriculture occupation, they went to the cities, they have adopted to the work of agriculture of the manufacturing fields. In that time, the 10% of the population are involved in a service sector. Other than 15 or 20 or other sectors, they are dependent on them. And in that time, the dependency of the agriculture has reduced. Why reduced? जो हुई है वो इसलिए नहीं हुई कि डेवलपमेंट हमारा अच्छा हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अच्छी हो गई, हमारे जो ऑप्शन है एग्रीकल्चर फील्ड में हो गए, जो एक्स्ट्रा एक जो जिसे कहा जाता है कि सीक्रेट अनएम्प्लॉयमेंट हो या डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट वॉज प्रेजेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड, दे हैव कन्वर्टेड टू डू इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, ऐसा नहीं था। The policy pressure of the agriculture policies have made or create a large enormous population as a unemployment. They give up the agriculture field. तो वो इन्वॉल्यूशन थी, तो अदर सेक्टर इनका भी जो है स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। तो ये जो पॉपुलेशन थी यानी जो डिपेंडेंसी तो एग्रीकल्चर की जो कमी आ रही थी, तो इस स्थिति में ये सारे स्ट्रक्चर दिखा रहे थे कि कैसे कैसे हमारे ऑक्यूपेशन की इस कंडीशन क्या थी। नाउ वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनी पीपल से दैट द इन्वेंशन ऑफ द रेलवेज और बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन हैव प्रोवाइड द न्यू साइट ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट। True, but not fair. This development is only based on the official purpose. This development has made for the linkage of the departmental sectors. Only the it is not for the public sector. These communication systems or railway system they use only for the facilities of their transportation and their administrations to control the Indian territories. Okay? तो ये रेलवे का हुआ, उस समय रेलवे का हुआ, टेलीग्राफ का हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, रोड का ट्रांसपोर्ट हुआ, पोर्ट्स हुआ, सब कुछ डेवलप हुआ, उसका कहीं ना कहीं लाभ थोड़ा बहुत मिला, लेकिन इसका मोस्टली जो है कंट्रोलिंग और उसका मोस्टली यूज जो है वह ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने ट्रेड को डेवलप करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए और इम्पोर्ट के इम्पोज करने के लिए किया जाता
रॉ मटेरियल की इजली सप्लाई हो सके। इंडियन किंगडम्स के ऊपर बाई फोर्स आर्मीज कर वन प्लेस से टू अदर प्लेस तक कंट्रोल करने के एज जितना जल्दी हो सके भेजा जा सके। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए। दैट यू हैव आल्सो लेसन अबाउट द गांधी जी की व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट की। गांधी जी फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे थे, उनको भी धक्के मार के निकाल दिया गया। तो वह जो है एक स्पेशल वर्ग के लिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। तो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो जरूर था कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, पर दे वॉट नॉट based on the Indian development. They are only produced for the development of the colonial economies. Okay? In all of these factors, we can say what is the conclusion of this? At last, ये कि कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे कि जो आज़ादी के 200 साल पहले तक के कंडीशन की बात की जाए, इन दैट टाइम ऑल पॉलिसी वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स और द कॉलोनियल रूलर्स only to make the more profitable and more the prosperity for their countries. They was not believed in the development or stability of Indian economy. Clear? तो ये overall these things जो हमने बताई ऑन द पॉइंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अंततः ये था कि जो भी ये कंडीशंस थी दे आर वेरी चैलेंजिंग फॉर द इंडियंस और इंडियन रूलर और द इंडियन प्रोग्रेस फॉर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये आज़ादी के देखिए ये सारी समस्याएं जो ब्रिटिश काल के दौरान प्रोड्यूस की गई, दे हैव न्यू चैलेंजेस फॉर द इंडिपेंडेंट इंडियंस। ओके, नाउ ये चैप्टर ओवर है। In next video I will start the next chapter. Thanks.